And welcome, Honorable President Madam. I request you all to kindly remain standing with the national anthem. I request you all to please be seated. Thank you. Namaskar, good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, we extend a warm and hearty welcome to you all in this special program under SAW, Skilling for AI Readiness, an initiative of the Skill India Mission, marking the conferment of the AI certificates, launch of IGNOU Regional Center and Skill Center at Rairangpur, Mayurbhanj, Odisha, and the launch of the National Awareness Campaign, #Skill the Nation Challenge. We are deeply honored to have the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Education, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Education, Government of India, Shri Jayant Chaudhary ji, Honorable Members of Parliament, Mr. Sanjay Kumar, Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, Ms. Debashri Mukherjee, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Vineet Joshi, Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India, Professor Uma Kanjilalji, Vice Chancellor, IGNOU, senior officials from Government of India, respected teachers and dear students, our tech partners, and other esteemed guests present here, and those who are virtually connected, we welcome you all in this special program. And to commence today's proceedings for the welcome address, may I request Honorable Minister of State, Independent Charge for Skill Development and Entrepreneurship and Education, Government of India, Shri Jayant Chaudhary ji. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, Secretaries of Ministry of Education, Sanjay Kumar ji, Vineet Joshi ji, Secretary MSDE, Vice Chancellor of IGNOU, Honorable Members of Parliament, distinguished guests, students, academicians, members from industry, our colleagues, it is indeed a privilege to welcome you all to Rashtrapati Bhavan on the first day of the year. It's a fitting moment and setting to begin the year with an appreciation for lifelong learning, with readiness for dynamic change, and with a clear commitment and resolve for the future. Today marks a set of very important milestones. We are recognizing young student learners and also honorable members of parliament who have completed skilling for AI readiness courses. We are inaugurating IGNOU's Rairangpur Regional Center and launching the #Skill the Nation Challenge, which is a national call for citizens to actively participate in India's skilling journey. I'm deeply grateful to the Honorable President of India for being with us today. Her presence sends a very powerful message that curiosity, learning,
and preparedness for new technologies are central to India's national vision. I also thank Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan, for his leadership in aligning education and skilling with the country's evolving dynamic needs. Artificial intelligence is not science fiction. It is no longer a distant concept. It is already reshaping how we learn, work, and solve problems. Steve Jobs had once commented that computers are the bicycles of the mind. If so, then potentially today AI could be considered as an EV mass transport mobility solution on the knowledge superhighway. The real question before us is simple. Are our people in India prepared to engage with this empowering but disruptive new technology confidently and responsibly? India's answer has been clear. Through the India AI Mission and National Education Policy 2020, we have placed a very strong emphasis on early exposure, institutional capacity, and lifelong learning. Global assessments also reflect this direction. Stanford University's 2025 AI Index ranks India third on the Global AI Vibrancy Index. This progress is encouraging, but also reminds us that leadership in AI will ultimately depend on how well we are able to skill our people. And this is where SOAR comes in. Launched in July 2025 as the Skill India mission completed 10 years, SOAR set out to demystify AI and make it accessible across regions and backgrounds. And it goes beyond awareness. The focus is on building confidence, capability, and real readiness to create and use technology with purpose. With about 1.6 lakh enrollments across structured learner pathways and an AI for Educators program, SOAR captures India's growing appetite for future-ready learning. In fact, I also stand before you today, not as a minister, but as a stakeholder in the Skill India mission. I join our honorable MPs, as even I have completed the free online AI course recently on Skill India Digital Hub. And I view this as a very important accomplishment in my own learning journey. I invite students, workers, educators, and institutions to join the Skill the Nation Challenge, because the idea is to move skilling from a government program to a people-led movement. In reflection, this challenge is also central to the key pillar and promise of the National Education Policy, which promotes access, quality, and equity, and calls for us to integrate technologies in every aspect and every stage of our academic experiences. Accordingly, we are strengthening our capacities in the institutional level. On 23rd December 2025, the Skill Ministry announced a partnership with NCVET, Google, and Chaudhry Charan Singh University, Meerut, to develop a model for AI skill adoption. What succeeds here could guide institutions across the country. The inauguration of IGNOU's Rai Rangpur Regional Center brings quality education and skilling closer to learners and reinforces our commitment to reaching every part of the country. As we look ahead, our focus remains clear. AI must expand opportunity, strengthen inclusion, and support national growth. And India's learners must be prepared not just to adapt to the future, but to shape it. I'd like to end with a simple thought. When learning becomes a national movement, our progress becomes inevitable. Thank you. Thank you, Honorable Minister of State, Independent Charge for Skill Development and Entrepreneurship and Education, Government of India, Shri Jayant Chaudhary ji, for your opening remarks. And may I now request Honorable Minister of State, Shri Jayant Chaudhary ji, to kindly felicitate Honorable President Madam by presenting a shawl and a memento. माननीय राष्ट्रपति जी, ये आपको बताना चाहेंगे, ये पेंटिंग जो है वो जन शिक्षण संस्थान भुवनेश्वर की महिला ट्रेनी ने तैयार किया है. Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, we present a short video on SOAR, Skilling for AI Readiness, an initiative of the Skill India Mission.
India's vision for artificial intelligence is clear. Technology must empower every citizen and create opportunities for all. सरकार ने देश के एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। In July 2025, India moved to prepare its youth for an AI-driven future, not as a privilege for a few, but as a right for all. Guided by this vision, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched SOAR, Skilling for AI Readiness. SOAR was designed to make AI accessible, introducing learners to AI concepts, ethical use, and future opportunities through structured, self-paced learning. SOAR created learning pathways for students of classes 6th to 12th through 3 progressive micro-credentials: AI to aware, acquire, and aspire. Educators too were empowered with a specialized module to integrate AI into classrooms with ethics, inclusion, and responsible use. In a short span of time, SOAR has reached learners across the country, translating awareness into meaningful participation and certification. Today, SOAR has reached more than 1.59 lakh learners, with thousands successfully earning certifications and building confidence in their digital future. अब इस मॉड्यूल को करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आने वाले समय में एआई किस तरह से एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट हर फील्ड में हम सब की जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। Behind every number is a story. A young girl from NV Gurugram discovering AI for the first time. In this course, I learned so many new things. It sounds like our textbook. It includes infographics, videos, and so many examples that all things make it very easy. A teacher reimagining the way learning can happen. This course is designed to build practical AI knowledge to the teachers rather than giving theoretical knowledge. In this course, they emphasize on creation of content, creation of assessment structures that helps educators. A student realizing that AI is not just technology. This program made me confident for using AI tools in my daily life and in my academics, and motivates me to upgrade my skills in this emerging technology. AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बेहतर प्रशासन, बेहतर संपर्क, बेहतर निर्णय लेने की एवं एक सशक्त साधन है। SOAR for generations that learns, leads and builds with AI. AI for all, skilling for AI readiness, empowering young minds, enabling India's AI potential. We now humbly request Honorable President Madam to kindly virtually inaugurate the IGNOU Regional Center and Skill Center at Rairangpur Mayurbhanj Odisha. As we step into the new year, we reaffirm a simple but powerful truth. Education and skills together are the foundation of national development. For nearly 4 decades, IGNOU has transformed access to higher education, taking learning to the doorsteps of millions across India and abroad. Established by an Act of Parliament in 1985, IGNOU was created to serve those beyond the reach of the conventional system. Today, with 3.9 million learners across 350 academic programs, IGNOU reflects the diversity of our nation across age, gender, geography, and socio-economic backgrounds, united by aspiration. Our mission rests on 3 enduring principles: education for all, reaching the unreached, and inclusion of the marginalized. As India advances towards a knowledge-based and skill-driven economy,
IGNOU aligns closely with the National Education Policy 2020, emphasizing multidisciplinary learning, employability, and lifelong education. Skill education is central to employability and entrepreneurship. In collaboration with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, IGNOU is establishing skill centers under PMKVY across 70 regional centers, bridging education and work with nationally aligned job roles. We begin the year by inaugurating a new regional center and skill center at Rairangpur, Mayurbhanj, Odisha, an aspirational, predominantly tribal region, bringing higher education, skills, and livelihoods closer to communities. The center will offer skills in agriculture, food processing, tourism, hospitality, retail, IT and ITES, and entrepreneurship, enabling sustainable careers and enterprises. As IGNOU enters its 5th decade, with the blessings of the Honorable President of India, the visitor of IGNOU, we reaffirm our commitment to an Atmanirbhar and Vikasit Bharat, where education and skills empower every citizen. We now invite Honorable Minister of Education, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan Ji, and request Honorable Minister Sir to kindly deliver his address. नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप तथा शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी, रायरंगपुर में उपस्थित उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री गणेश राम खुंटिया जी, कृष्ण चंद्र महापात्र जी, मयूरभंज की लोकसभा की सदस्य आदरणीय नवचरण माझी जी, रायरंगपुर की विधायक आदरणीय जलेन नायक जी, पद्मचरण हाईब्रू जी, भादव हंसदा जी तथा यहाँ मंच पे उपस्थित भारत सरकार की शिक्षा सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, स्किल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय देवश्री मुखर्जी जी, उच्च शिक्षा संस्थान की सचिव आदरणीय विनीत जोशी जी, इग्नो के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी, मयूरभंज के आदरणीय कलेक्टर हेमकांत साय जी, एसपी वरुण गुंटापल्ली जी तथा इग्नो के रीजनल डायरेक्टर मनोज कुमार दास जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय सांसदगण, स्कूल की विद्यार्थी भाई और बहनों और शिक्षा विभाग, स्किल डिपार्टमेंट तथा सभी सरकार की अधिकारी मित्रगण, अन्य नागरिक मित्रगण और रायरंगपुर उपस्थित समस्त भाई भौणी माने, गुरुजन माने, सांबादिक बंधुगण, आज एक बहुत ही अच्छे दिन है। एक तो इंग्लिश कैलेंडर में आज साल की पहला दिन है, कुछ अच्छा काम से ही साल शुरू होना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस प्रकार की 2 केंद्र का आज समाज को लोकार्पित किए और एक स्कीम की अखिल भारतीय एक प्रकार से प्रारंभ भी किया गया। रायरंगपुर में इग्नो की एक रीजनल सेंटर बनाई गई। मैं उसके लिए रायरंगपुर की सभी विद्यार्थियों को जो इग्नो से आने वाले दिनों में जुड़ेंगे उनको शुभेच्छा देता हूं, उनको बधाई देता हूं। उड़ीसा सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके इग्नो को मैं भी धन्यवाद देता हूं वहाँ के रीजनल सेंटर को स्थापित करने के लिए। दूसरी ओर मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इग्नो को चुना नॉलेज पार्टनर के नाते उस रीजनल सेंटर में, जो नॉर्मल इग्नो की कोर्स के साथ साथ समाज में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, रोजगारी बढ़े, उद्यमिता बढ़े, स्किल डिपार्टमेंट की ही मैंडेट है। उन्होंने इग्नो को पार्टनरशिप देते हुए स्किल डेवलपमेंट की भी एक सेंटर आज वहाँ लोकार्पित किया है।
इस 2 सेंटर की लोकार्पण के अवसर पे मैं मयूरभंज वासियों को, उड़ीसा के नागरिकों को अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। ये इसीलिए सफल हो पाई है, देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो खुद ही एक जीती जागती मिसाल है। शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। इसलिए जब उनकी पास दायित्व आई, उन्होंने उस दायित्व को आगे बढ़ाते हुए हम सबको मार्गदर्शन किया, दायित्व दिया कि हमें इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बनाएं जिससे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाले लोग उसकी फायदा लें। इस प्रकार के आज एक शुभ अवसर आई है। राष्ट्रपति जी का जिंदगी अपने आप में वैल्यूज और डिग्निटी का एक उदाहरण है। मैंने कहा कि एक शिक्षा कहाँ तक हमको ले जा पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आत्मनिर्भर भारत की आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत की पहला शर्त है भारत की नागरिकों की इकोनॉमिक आउटपुट बढ़े। आज भी हमारे देश में जितने वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स की आयु में 50% लोग वर्कफोर्स में आते हैं। उनका भी कैपेसिटी एक विषय, उनका दक्षता ही एक विषय है। मैं मानता हूँ आज जो उड़ीसा के एक सुदूर इलाका रायरंगपुर में आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति में हम एक नई प्रकार की आयाम शुरू कर रहे हैं। भारत की ग्रामीण इलाका की, भारत की आदिवासियों की, भारत की वंचित वर्ग के लोगों की, भारत की पिछड़े लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनको स्किल्ड करने में इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ी कदम होने वाला है। हम लोग लंबी छलांग लगाएंगे। हमें विकसित भारत बननी है प्रधानमंत्री जी की योजना से, तब हमें कम से कम हमारी वर्कफोर्स की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, जो आज 50% है। देश में 15 से 59 की आयु में लगभग 90-95 करोड़ लोग हैं। काम करने वाले लोग 45-48 करोड़ लोग हैं, यानी इसकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। इसकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, उनकी दक्षता को बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसलिए आज बहुत उत्साहित हूँ। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं थोड़ा ईर्ष्या भी करता हूँ राष्ट्रपति महोदय, जो सांसद सब AI के सर्टिफिकेट्स ले गए, हमसे वो आगे चले गए। मेरे को खूब, जयंत जी भी हमारे तो ऐसे ही स्मार्ट हैं, आगे ही है ही, लेकिन मेरे को जल्दी ही एक AI कोर्स सर्टिफिकेट खुद के लिए लेना ही पड़ेगा। और मैं आज मेरे सभी सांसद मित्रों को बधाई देता हूं, और विशेष करके जो बच्चे इसी साल 2026 में भारत AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस करने वाला है, उस समय में देश को अगर हमें एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, हमारी नई पीढ़ी को AI के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करानी पड़ेगी। मैं मानता हूं 21वीं सदी में विशेष करके भारत जैसे दुनिया AI को डर रहा है, हम AI को यूज करेंगे। भारत आज भी डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया की अव्वल नंबर की देश बन चुका है। हमारी UPI दुनिया की सबसे बड़ा पेमेंट लेन देन की व्यवस्था सॉफ्टवेयर बन चुकी है। आने वाले दिनों में आज जिसकी बीजारोपण आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथ में हो रहा है, आने वाले दिनों में हमारी देश की नई पीढ़ी, हमारी देश की शिक्षक, ये जो वर्कफोर्स में मैंने जो अपेक्षा कहा कि विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में 75 करोड़ लोगों को ले जाना है, और 75 करोड़ लोग सिर्फ आए काम पे, ऐसा नहीं, उनको काम करना भी आना चाहिए। काम पे आए और काम करना आने चाहिए। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा जो स्किल डिपार्टमेंट की ओर से AI फॉर ऑल, जो उन्होंने एक शोर कार्यक्रम चलाया है। अनेक विभाग इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। बंधुगण, आज जो मैंने रायरंगपुर ये उपस्थित अच्छा कार्यक्रम में मुझे विशेष करके बहुत बहुत कृतज्ञता राष्ट्रपति महोदय को जणेमा सह ओडिशा तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँगी। आज प्रथम थर करके इग्नोर केन्द्र रे स्किल भी शिखाଯିବ। मयूरभंज जिले में जी वनस्पति अच्छी, जी श्रम शक्ति अच्छी, दुईटा को जदि मिसा जाई पारे, सेठिकार जदि आमर गाँव लोक मानू, आदिवासी लोक मानू, पछुआ जाति लोक मानू, वंचित वर्ग लोक मानू, दलित लोक मानू AI को उपयोग करके, किए 8म क्लास पढ़ी, किए 12 क्लास पर्यंत परीक्षा दे न पारिकी काम को पलैछि, किए ग्रेजुएशन करला परे भी काम धाम न पाइकी बुलुछि।
ताकू इग्नो सेंटर बहुत बड़ा सहायक हम ताकू एआई माध्यम नुआ नुआ विषय को जानिमा पढ़िबा पढ़िकी से ताकू निजको रोजगार उपयोगी करेबो। आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैं राष्ट्रपति महोदया जी की जो जिला है उस जिले में इतना बड़ा बायोस्फीयर है, वनस्पति की एक भंडार है, जिसमें एक वहाँ सिमलीपाल करके उस वनस्पति की जंगल की नाम है, उसमें दुनिया के एक अजूबा जंगल है, दुनिया के मैं कर रहा हूँ, हमारे वहाँ इतना प्रचार नहीं हुआ है इसीलिए उसको लोग कम जानते हैं। आप सब आइए सिमलीपाल घूमने के लिए। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में कह रहा हूँ, उसमें से वनस्पति के अलावा कम से कम 15 प्रकार की अलग अलग स्वाद की हनी मिलता है। ये सारा चीज अभी नया टेक्नोलॉजी, नया स्किल कैपेसिटी को यूज करते हुए अगर मयूरभंज जिले की सिमलीपाल की हनी, और मेरे को आज कहा गया वहाँ आज एनिमल हस्बेंड्री की भी टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगा। उस जिले में, उस जिले की ख्याति है गोट के लिए, उस जिले की गोट्री के लिए अगर उसमें स्किल सिखाया जाएगा और उसमें एआई जोड़ दिया जाएगा। बाजार में कहाँ अच्छा गोट मिलता है तो मयूरभंज जिले में मिलते हैं, कहाँ मार्केट है वो एआई हमको बताएगा। ये सारे आने वाले दिनों में मयूरभंज जिले के किसान, मयूरभंज जिले के आदिवासी उसमें जुड़ेंगे, हमको अर्थनैतिक फायदा होगा। मैं अंत में फिर एक बार परमादरणीय राष्ट्रपति जी को आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का माध्यम चुना, खुद उसकी वो जिंदगी जिया है, इसीलिए उनके अनुभव से मयूरभंज जिले की, उड़ीसा के और भारत की पिछड़े वंचित इलाका को, प्रधानमंत्री जी की सपना है टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम एक नई भारत बनाएंगे जो आत्मनिर्भर होगा, स्वाभिमानी होगा, तभी जाके विकसित हो पाएगा। आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साल की पहला दिन साक्षी बनने के लिए आप लोगों को सौभाग्य मिला। मैं आपको भी शुभेच्छा देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके प्रेरणा और प्रोत्साहन से ओतप्रोत संबोधन के लिए। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी फॉर योर एड्रेस। And now, ladies and gentlemen, may I have the privilege and honor of inviting Honorable President of India and request Honorable President Madam to kindly address the August gathering and launch the National Awareness Campaign, #Skill the Nation Challenge. नया साल में राष्ट्रपति भवन के इस RBCC ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार जी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की सचिव सुश्री देवश्री मुखर्जी जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनीत जोशी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उमा कंजीलाल जी, रायरंगपुर माननीय सांसदगण एवं रायरंगपुर में बैठे हुए माननीय सांसद श्री नवचरण माझी, मंत्री श्री गणेश राम खुंटिया, विधायक जलेन नायक, विधायक भादव भांसता, मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, मयूरभंज के कलेक्टर श्री सय, रायरंगपुर के सब कलेक्टर एवं सभी पदाधिकारी समस्त को नमस्कार। सभी को नया साल का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इग्नू तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत भी एक सराहनीय
प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीणों भाई बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयास के लिए मैं कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सभी के लिए एआई के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत प्री एआई मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा एआई से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। भारत सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। एआई लैब्स और एआई मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ सांसदगण भी आज यहाँ लर्नर्स के रूप में उपस्थित है। इस कोर्सेस को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्वयं सीखकर अपने लीडरशिप थ्रू लर्निंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किया गए हैं। आज बच्चे जो वहाँ मैंने देखा फ़ोटो उठा रहे बच्चे अपना सर्टिफिकेट ऐसे सामने दिखा के फ़ोटो उठा रहे हैं। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी सांसदों को और बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे स्किल द नेशन चैलेंज की शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एआई लर्निंग और इनोवेशन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये इनिशिएटिव लाखों लर्नर्स को आगे लाने, अपने क्षमता बढ़ाने और भारत में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, आज का ये आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबको नई तकनीकी सीखने की जिज्ञासा रखने के लिए और एआई लर्निंग मॉड्यूल्स पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आप संभावना और अवसरों से युक्त भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी तथा आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा करने, चुनौतियों के समाधान सीखने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है।
आने वाले दशक में देश के जीडीपी, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी। सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडेमिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने तथा टेक ड्राइवन समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब अपना योगदान दें। रायरंगपुर बसीथिबा सब विधायक, मंत्रीगण एवं सेठिकार सभी लोक प्रतिनिधिगण समस्त को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज नवा वर्ष रे आपण मानकु शुभकामना देउछि। आमे सेठी आमर जो सेंटर खोला जीवो, स्किल सेंटर खोला जीवो, इग्नू यूनिवर्सिटी खोला जीवो, ताकू ठीक भाव में उपयोग करवा, ताकू व्यवहार रे आनिबा, ए सब दायित्व आपण मानकर। तेणु किपरि देखिए आर्थिक उन्नति हेबो, सामाजिक उन्नति हेबो, अर्थव्यवस्था लोकंक पाखरे सुविधा हेबो, ए विषय रे चिंता करवा आम मानकर काम। बाकी ताकू केमती सफलता बनेबा आपण मानकर काम। तेणु आपण माने ताकू लागि पड़ंतु एवं लोक मानक पाखक नियंतु, लोक मानक सचेतन करंतु एवं लोक किपरि आर्थिक उन्नति करि पारिबे सेति पई प्रयास करंतु। मु आपण मानक बहुत बहुत शुभकामना देउछि। धन्यवाद। समस्त भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आप सभी से निवेदन, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद।